Hello, Kavita, and welcome to the session. Thank you so much for being here. Yeah, namaste. Namaste, Andrea. Namaste, Kavita. Thank you. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. I feel extremely happy. ಯಾ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 30 साल के बाद मिल चुके हैं, करीब 45 साल. कविता जी, बहुत बहुत खुशी हो रही है. पता नहीं क्या पूछूं मैं आपसे, लेकिन आपको इनवाइट किया है एक वजह, एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, राइट? तो डियर फ्रेंड्स, आई हैव इनवाइटेड माय सेलिब्रिटी टुडे ऑन द इंटरनेशनल फैब टॉक्स टू शेयर अबाउट टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. On the International Fab Talks, we've been sharing all different kinds of topics. We've been speaking on different matters or different topics, except for politics and religion. All topics were discussed on the International Fab Talks. And today, two great topics are going to be discussed, which is a taboo on most platforms. Today, we are going to talk about single parents. What are the troubles and struggles and challenges they face? And of course, we are going to talk about alcoholism. How does it affect the family? And what are the things necessary to be done if we have an alcoholic at home? What are the priorities we have to focus on? So it's going to be all about a family session. So all the single parents and of course all the alcoholics, if you are watching this program, it is for you and for the family members who belong to this zone. And if I make any mistakes while speaking, kindly forgive me because I'm really overwhelmed with the presence of my friend. It's just, I feel like giving her a virtual hug or meeting her personally and saying that she means a lot to me. Yes, dear friends. So we'll not go deep into our friendship. Yeah. We're going to come to the topic now. What is the Yes, topic? yes. Let's get to know from our celebrity guest. Kavita ma'am, should I call you Kavita ma'am or Kavita? No, no, no. You can call me only Kavita. How sweet. So this is my friend. So I have the habit of calling Okay. everyone ma'am or sir, but No, I'm no. going to call you Kavita because that makes you extra special and closer to me. Yeah. Yes, Kavita, today I'd like to thank you so much for agreeing to share the time with me on the International Fab Talks and to talk about a great topic, which is a taboo on many platforms, that is single parenting. Now, according to you, आपके हिसाब से single parenting का challenges क्या है और इससे कैसे हम सामना कर पाएंगे, क्योंकि सोसाइटी में सिंगल पेरेंट्स को जीने के लिए उतना आसान नहीं है. सोसाइटी लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, सोसाइटी वाले बोलते हैं या अपने रिश्तेदार बोलते हैं. अनेक तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं एक सिंगल पेरेंट के लाइफ में. तो हम ये जानना चाहेंगे एक सिंगल पेरेंट के लाइफ में किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं और क्या करनी चाहिए अगर एक सिंगल पेरेंट है. शायद बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही बार पूछ लिया, तो बस एक ही क्वेश्चन पर फोकस करेंगे. सिंगल Okay. पेरेंट्स के चैलेंजेस क्या होते हैं? ओवर टू यू. Okay. Very nice question, Andrea. So much thank you. सिंगल पेरेंट्स मतलब क्या होता है? वो डिफिकल्ट तो होता ही है. वो बच्चों को संभालना और इन इन लॉस रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, उनको भी क्या होता है, माँ बाप को अभी हो गया, बेटी का कैसा हो गया, तो उनको भी मतलब उनको भी सांत्वन देना पड़ता है, और बच्चे जो रहते हैं उनको भी देखभाल करना पड़ता है. और मन से हमको पहले जो क्या होता है, पति जो रहते हैं वो रहते तो एक मन बॉन्डिंग रहता है, स्ट्रांग रहते हैं, और विल पावर रहता है हमारे ऊपर. तो वो रहते तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो है तो क्या है, सब कुछ चलता जाता है, चलता जाता है. पर अगर सिंगल पेरेंट हो गए ना, तो बहुत मुश्किल होता है जीने के लिए, क्योंकि हैंडल करना तो बहुत मुश्किल हो जाए, टूट सी जाती है. और टूट सी जाती है तो कैसे करने का ओवर बर्डन हो जाता है. तो मुश्किल क्या होता है, अभी देखो, छोटे बच्चे रहते हैं तो भी मुश्किल, बड़े हैं तो भी मुश्किल. तो अगर हस्बैंड रहते तो हम उनको बता सकते हैं ये होता है, वो होता है, तो दूसरों को हम किसी और के ऊपर डिपेंड होके ये नहीं बोल सकते क्या होता है हमारे ऊपर. तो बहुत सारे डिफिकल्ट्स आते हैं संभालना. देखो, अभी फाइनेंशियल रहता है, और घर कहीं जाना रहता है, और पढ़ाई लिखाई रहता है, सब कुछ रहता है. तो ये क्या होता है, सिंगल सिंगल पेरेंट के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है संभालने के लिए. सही है आपने जो कहा. अगर साथी हमारा नहीं है, गुजर चुके हैं या डाइवोर्स हो चुका है या सेपरेशन हो चुका है, तो बहुत बहुत मुश्किल होता है बच्चों को संभालना, समाज को क्या जवाब देना. बहुत बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. अभी हम ये जानना चाहते हैं मानसिक रूप से कैसे पीड़ित हो जाते हैं ये लोग, क्योंकि वो तो स्ट्रांग रहते हैं अंदर, लेकिन समाज के ताने सुन के या खुद के मन में अलग अलग सोच विचार आ जाते हैं, कभी कभी डर सा लगता है. तो मानसिक रूप
कैसा उन पर प्रभाव होती है? व्हाट इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑन देयर मेंटल हेल्थ? जी। नेगेटिव मतलब क्या होता है, अंदर से तो टूट ही जाते हैं। उससे उभरने के लिए बहुत टाइम लगता है। अभी क्या होगा, अभी देखो पैसे भी रहता है एक एक पास, तो पैसे भी नहीं रहता उनको, उसके ऊपर उभर के आने के लिए बहुत टाइम लगता है। टूट से जाता है कि अभी देखो, हमारा मेरा तो साथी नहीं रहा अभी, तो मैं किसको बोलूं, कोई भी मेरा मुश्किल चल रहा है मेरे अंदर, तो हेल्थ के ऊपर होता है, मानसिक तौर से कैसे गुजर, किसको बोलूं, क्या बोलूं, माँ बाप को बोलूं। तो मम्मी को तो हम बोल सकते हैं, मम्मी तो हमारी फ्रेंड जैसी रहती है, तो पापा को भी बोल सकते हैं। जैसे पापा को हम नहीं बोल सकते, मम्मी को बोल सकते, पापा तो रहते, हमारे पेरेंट्स तो रहते हैं। मम्मी जैसे कैसी रहती है, हमारी फ्रेंड जैसी रहती है। मानसिक रूप से बहुत मुश्किल होता है इससे उभरने के लिए। क्या होता है, थोड़े दिन तक तो हमारे साथ रहते हैं, रिलेशंस रहते हैं, सभी रहते हैं। पर बाद में क्या होता है, उनके उनकी सब कमिटमेंट रहता है, उनका ही जॉब रहता है, उनके घर वाले मतलब घर में जो जैसे उनका रहता है, वो तो थोड़े दिन हमको सांत्वन करते हैं, चले जाते हैं। फिर बाद में हमको क्या होता है, हमारा कोई नहीं है अभी, हम किसको बोलेंगे। हमारे बच्चे जो है उनको बोल सकते हैं, हम खुद को ही स्ट्रांग बनाना पड़ता है। तो मेंटल तो बहुत प्रेशर आ जाता है, इससे उभरने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर हो सकता है। तो वो उसमें क्या होता है, हमको बाहर निकलना पड़ता है, बाहर का क्या है माहौल है, आजू बाजू में क्या चल रहा है, वो तब हम बाहर से उससे निकल आना ही चाहिए। उससे हम और अंदर जाके फंसते रहेंगे ना, तो और टूट जाएंगे। पर अंदर तो होता ही है, इससे बाहर आने के लिए थोड़ा मुश्किल ही होता है, मेंटल बहुत तकलीफ होता है, मानसिक बहुत होता है। जिसका भी साथी गुजर चुका है या अलग हो चुके हैं या डाइवोर्स हो चुका है तो मुश्किल ही होगा। फाइनेंशियली बहुत बहुत मुश्किल होगा। अगर माँ बाप का साया है तो वो बड़ी बात है। अगर माँ बाप का साया नहीं है हर सर पे तो वो एक बहुत कठिन वक्त होती है सिंगल पेरेंट्स के लिए। तो आप एक संदेशा दीजिए उन सिंगल पेरेंट्स को जिन जो फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उनका फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबलाइज करने का कोशिश करने के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे सिंगल पेरेंट्स क्या करना है? बाहर जाके नौकरी करना है? क्या करना है आपके हिसाब से? क्या स्टेप लेनी है? अगर फाइनेंशियल भी वो डाउन है और किसी का भी साथ नहीं है, किसी का भी साथ नहीं है, मैं प्रैक्टिकली बोल रही हूँ, किसी के भी साथ नहीं है, तो खुद को उसको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। और कुछ तो कुछ उसके परिवार मतलब उसके जो बच्चे हैं, सास ससुर है, कोई भी उसके ऊपर डिपेंड है, तो अगर नहीं है तो भी उसको खुद को संभाल के कुछ ना कुछ उसके ऊपर, खुद के पैर के ऊपर खड़े रह के फैमिली को भी संभालना है और बच्चों को भी संभालना है। और जो समाज को एक संदेश देना है उसको, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, तुम सहारा देना है तो दे दो, नहीं तो मैं खुद के ऊपर कुछ ना कुछ करके मैं अपना परिवार चला लूंगी, मैं बच्चों को संभाल लूंगी। और मेरे को तो उनको स्ट्रांग बनना ही है, कुछ ना करना है और डिपेंड नहीं होना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। आजकल तो हम कितने लोग देखते हैं समाज में, कितने तरह से हम जॉब करने, अगर अनपढ़ भी है उनको भी कुछ ना कुछ करने के लिए गवर्नमेंट ने सब कितना स्कीम्स दिया है, कुछ ना कुछ को कर सकते, घर में बैठ के बेबी सिटिंग कर सकते हैं, और घर में बैठ के टेलरिंग कर सकते हैं, और कुछ घर में वर्क फ्रॉम होम में भी कुछ ना कुछ महिला कर सकते हैं। और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इससे तुम बाहर आ जाओ, दुनिया बहुत विशाल है और लोग भी बहुत सुंदर है, फ्रेंड्स रहता है, उनको पूछ सकते हैं और उनसे सलाह दे सकते हैं। उनसे सलाह दे के माइंड को थोड़ा स्ट्रांग करके, होता नहीं है पर अंदर से एक आवाज आती रहती है हमको, सिंगल पेरेंट को, तुम कर सकती हो, कम कर सकती हो। तो ऐसे ढूंढना चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म रहता है, फ्रेंड्स तो रहते हैं और रिलेशंस भी कितने सारे रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं। और बच्चे भी आजकल कितने होशियार हैं, माँ बाप कोई सिंगल पेरेंट हो गए तो कितना सहारा देते हैं, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, तुम बाहर निकलो करके। मैंने भी देखा है समाज में कितना, मेरे फ्रेंड्स भी विडो हुए हैं, उनके बच्चे ही नहीं, खुद के मम्मी को स्टैंड करके उनको खड़ा किया है। तो कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। यस डियर, बहुत बहुत बढ़िया मैम, आपने बहुत ठीक अच्छी तरीके से शेयर किया है। दैट्स रियली नाइस। अभी आपने ये शेयर किया है कि आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो उतना नहीं था लेकिन आजकल बच्चे बहुत बहुत प्रोग्रेसिव हो चुके हैं और अपने पेरेंट्स को, सिंगल पेरेंट्स का साथ बहुत दे रहे हैं। आई मीन दे आर हेल्पिंग देयर सिंगल पेरेंट्स टू लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ। हम ये पूछना चाहेंगे अभी
इस समाज में जब हमारे बच्चे हमारे साथ हैं तो हम सोसाइटी का परवाह नहीं करना है, डरना नहीं किसी से, या किसी के पैर के नीचे दब के नहीं रहना है, एक डोरमैट बनकर कहीं किसी के कहने से हम लोग झुक कर रहना है। तो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर। इफ यू आर अ सिंगल पेरेंट, raise your head high and live a beautiful life. Take the support of your children. If you have support of children, Yeah. your life will be beautiful. If you're a single parent, no matter what, they will stand by you. अभी कविता, हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कविता, थोड़े बच्चे जो है, जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखते हैं, तो अपने पेरेंट्स को आगे अच्छा जिंदगी बिताना, दूसरा शादी भी करा के देते, हमने देखा है बहुत, ऑनलाइन पेपर में भी पढ़ा है, और अपने जो फ्रेंड सर्कल्स है उनसे भी बातचीत हो चुकी है। थोड़े बच्चे उनके पेरेंट्स को एनकरेज करते हैं दोबारा शादी करने के लिए, क्योंकि वो नहीं देखना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं देखना चाहते हैं, सैड सिचुएशन में नहीं देखना चाहते हैं, उनको खुशी से रहना पसंद करते हैं, क्योंकि खुद का शादी हो चुका है एडल्ट चिल्ड्रन का। अब उनके माँ बाप भी कोई अच्छा साथी मिल गया उनका, ऑफ कोर्स इफ दे आर सिंगल, उनका शादी दोबारा हो सकती है, तो उनका हेल्प भी कर चुके हैं। और सीक्रेटली भी एक जगह मैंने ऐसे पढ़ा है, one girl, she has arranged the marriage of her mother. That is really very, very nice. It came out in the newspaper as well, and even online I read that. She really enabled her mother to remarry and live a happy life. She could not see her mother. अपनी माँ का तकलीफ को नहीं देख सकती थी वो, कि भाई अपनी माँ अकेलापन महसूस कर रही है। So she, as stood by her mother and got her mother married. It's a very beautiful union. Not only this, we've also seen men being supported. जो सिंगल फादर्स है उनको भी बहुत सारा सपोर्ट मिल चुका है अपने एडल्ट सन्स एंड डॉटर्स से, टू रीमैरी एंड टू लिव हैप्पीली। तो रीमैरिज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या एक सिंगल पेरेंट रीमैरिज के लिए तैयार हो जाना है, या समाज से डरना है? ये बात मुझे स्पष्टता से बताइए, या बोलिए। ओके। देखो, अभी सिंगल पेरेंट तो बहुत सारे हैं। वो तो अचानक से डेथ हुआ तो होता रहता है, डेथ तो हुआ है समझो। तो छोटे बच्चे जो रहते हैं, छोटे बच्चे मतलब ये दीदी को पैदा पैदा होते हैं, स्कूल में जाने वाले हैं, प्राइमरी स्कूल में जाने वाले हैं, कॉलेज में भी जाने वाले हैं। तो उनकी मानसिक स्थिति क्या होता है, पहले तो समाज ही आता है। समाज क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा, डर के मारे बहुत सारे वो अंदर दबा के शादी नहीं करते। ठीक है, नहीं कर सकते, और करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकते। तो ये लोग क्या सोचेंगे, समाज वाले क्या सोचेंगे, मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे, अभी तो मेरी छोटी है, तो बाद में मैं तो हैंडल कर सकती हूँ, मैं करूंगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा नहीं है। तो वो छोटी रहेगी, बच्ची बड़ा रहने दो, अगर बच्ची है तो समझो, तो कैसे करेगी वो पालन पोषण अकेली? तो उसको देखभाल करने के लिए कोई तो चाहिए ना। अगर समझो उसके ससुर है, कोई है, तो भी वो सास ससुर है, ब्रदर इन लॉ है, कुछ भी है, हस्बैंड जैसा तो कोई नहीं सहारा देता, कोई नहीं सरता। मैं डायरेक्टली क्या बोलती हूँ, आजकल तो समाज से बिल्कुल डरना नहीं है, डरना नहीं है। क्योंकि हम जो चाहते हैं, बच्चे जो चाहते हैं, हम उनके साथ बात करना। अगर समझ में आने वाले बच्चे से मैं पूछ रही हूँ, छोटा बच्चा रहे तो वो तो कुछ समझ में नहीं आता। तो वो क्या, उसके मन में क्या है, वो क्या सोचता है, वो थोड़ा बातचीत करके, अगर अभी तुमने एक एग्जांपल बोली ना, वो रीमैरिज किया है एक मम्मी के, तो हो सकता है तो कर सकते हैं। समाज से तो बिल्कुल डरना ही नहीं है, क्योंकि समाज वाले तो आज भी बोलेंगे, कल भी बोलेंगे। वो तो हमारी लाइफ है, हम कितना खुश रहते हैं, हमारी हैप्पी लाइफ हमको चाहिए। हमको अच्छा तरह से लीड करना है, समाज समाज को भी कुछ दिखाना है, हम कैसे हैं, इससे उभर सकते हैं, इससे हम हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं। तो समाज से तो बिल्कुल डरने का नहीं नहीं। जी जी, आपने नहीं बहुत डरने। सही कहा जी। और बताना चाहेंगे आप? वही तो बताती हूँ, पहले तो डर लगता है। अभी मैं देखो, मैं भी सिंगल पेरेंट हूँ, मैंने भी, मेरे फ्रेंड्स भी कितने सारे हैं, उन्होंने भी शादी किया है। तो पहले वो बहुत डरते थे, फिर बाद में खुद सोचने लगे, मेरी तो भी देखो फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम है, मैं किसके साथ किसको बोलूं, मैं तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ। पढ़े लिखे वाले भी सोचते थे मेरे को हेल्प हैंडिंग चाहिए, क्योंकि मेरा जो तकलीफ है किसको बताऊं, बच्चों को तो बोल सकती हूँ, वो बच्चों को बोलना अलग है।
और पार्टनर को बोलना अलग है। इसलिए मैं क्या बोलती हूँ, समाज से तो बिल्कुल डरने का ही नहीं है। जिस हमको जो अच्छा लगता है, हमको हैप्पी है, हैप्पी हैप्पी क्या बोलते हैं, हैप्पी हैप्पी लाइफ लीडना है तो समाज से तो बिल्कुल डरने का ही नहीं है। और समाज से इससे अच्छा सबक हमको देना है। इसलिए मैं बोलती हूँ समाज से तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कहा है कि समाज से नहीं डरना है। समाज से डरोगे तो मौत से पहले ही मर जाओगे। तैर के तमाशा देखते हैं लेकिन आगे आके हम्म, बहुत कम लोग मदद करते हैं, है ना। बरोबर। यस डियर, तो ये आपने बहुत अच्छा शेयर किया है कि रीमैरिज अगर हो तो कर लेनी है, तो झिझकना नहीं है, सही इंसान से करना है। अभी कविता हमने ये भी देखा है, देखिए, शादी कर लेते हैं सिंगल पेरेंट्स जो है, या सिंगल पेरेंट्स शादी कर लेते हैं, फिर गलत इंसान से कर लेते हैं, और वो गलत इंसान और उनके जिंदगी में दुख दर्द लेके आते हैं। जो पहले वाले पति या पत्नी ने लाया वो दुख दर्द दिया था, वो दोबारा शादी करने से फिर ऐसे उनका लाइफस्टाइल वैसे वही पैटर्न से चलती रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो तो मैंने भी सुना है, और आजकल फेसबुक पे भी हम लोग देखते रहते हैं, मैट्रिमोनियल देखो, शादी.com रहता है वेबसाइट में, शादी तो देखते ही सब ये करते, फिर भी हमको उसमें से फ्रॉड ही कहीं कहीं निकलता है, भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए मैं क्या बोलती हूँ, हमारे अभी देखो हमारा बेस्ट क्या होता है, पेरेंट्स से पहले पहले हमारा पेरेंट्स है, हम उनसे बात कर सकते हैं इसके बारे में। दूसरा कौन है, हमारे सिस्टर्स और ब्रदर्स, तो उससे भी हमसे बात नहीं हो रही है, पेरेंट्स से भी हमको कुछ नहीं हेल्प नहीं मिल रहा है, तो कौन है हमारा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो मैं क्या बोलती हूँ, फ्रेंड्स ही हमारा एक ही मान सोर्सेस है। हम उनके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं, हमारे मन में जो है क्या है, हम कैसे हालत से गुजर रहे हैं, हम बिंदास उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो शेयर उसके साथ शेयर करके उसके हम हमारा जो अंदर चल रहा है, हमको क्या लगता है क्या चाहिए, उसके साथ हम बातचीत करके, तो हमको क्या चाहिए उनके साथ शेयर करके पार्टनर ढूंढ जी। सकते हैं। और एडवाइस भी दे सकती हूँ मैं। मेरे ख्याल से मेरी दो तीन फ्रेंड तो मेरे को बोलते थे मेरा ऐसा है, मैं उनको सलाह देती थी, देखो तुम पहले तुम्हारे बच्चों के साथ तुम सलाह ले लो, फिर बाद में तुम मेरे को क्या चाहिए मेरे से पूछ लो, तुमको क्या अच्छा लगेगा, तुमको जो अच्छा लगेगा वो तुम करो। और तुमको जो पहले देख लो क्या है कौन है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो सब देख ले, तुम ये करो, पहले से फटाक से डिसाइड मत करो। और अंदर का जो हमको फीलिंग होता रहता है, तो वो घुटन से हमको बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, उनसे हमको बाहर निकलना है। जी कविता, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट। अभी हम ये पूछना चाहेंगे, फाइनेंस के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सिंगल पेरेंट्स जो हमने देखा है रीमैरिज कर चुके हैं और दोबारा वही ट्रैप में गिर चुके हैं, जो पहले वाले शादी में भुगत चुके हैं, दोबारा भुगत रहे हैं वो। तो फाइनेंशियली उन लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो शायद शादीशुदा हो या सिंगल पेरेंट्स हो, या जो भी हो, पार्टनरशिप में हो, लिव इन रिलेशनशिप में हो, जो भी हो, फाइनेंशियली यू शुड बी वेरी स्ट्रांग। इसका मतलब क्या है, आप अपने फाइनेंसेस किसी को भी नहीं बोलना है, थोड़े बहुत पैसे खुद बचा कर रखना है। पता नहीं वक्त कब बुरा रहेगा, किसका वक्त कब बुरा रहेगा किसी को भी नहीं मालूम। तो बेवकूफ बन के हम लोग किसी पर भरोसा नहीं करना है, और फाइनेंशियली अपना फाइनेंशियल स्टेटस किसी को नहीं बोलना है। थोड़ा बहुत शेयर करनी है, थोड़ा बहुत अपने लिए छुपा के रखना है। ये तो बड़े लोग कहते हैं, पुराने जमाने के लोग जो है कहते हैं, यू हैव टू सेव समथिंग विदाउट योर पार्टनर नोइंग। क्या आप मानते हैं इसको? या सही है, बरोबर है, क्योंकि आजकल पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जो हमारा पैसा है क्या है, हम किसके साथ बोल रहे, वो थोड़ा समझ के बात करना, सबके साथ हम शेयर नहीं कर सकते, बच्चों के साथ शेयर कर सकते, क्योंकि बच्चे तो हमारे हैं। आजकल के मैं क्या सोचती हूँ, और मेरे को प्रैक्टिकल भी मैं बोल रही हूँ, सबको संदेशा दे रही हूँ, तुम बच्चों से फ्रेंडली रहोगी रहोगी तो उतना ही तुम आपके लिए अच्छा है।
क्योंकि आजकल के बच्चे से हम बहुत सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा जमाना तो गया अभी। वो टाइम में भी बहुत सारे फोन था, सब था, ये था। पर आजकल जो है, बच्चे भी, जैसे मैं बोलती हूँ, सब बच्चे ऐसे नहीं रहते। पर कितना हम ओपनली बच्चों के साथ बात करते हैं, उसके मन में क्या है, हम धीरे से थोड़ा पेशेंस से बात करेंगे ना, तो समस्या बिल्कुल हल हो जाएगी। जी जी और जी। फाइनेंशियल फाइनेंशियल तो किसी के साथ हम शेयर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो हमारा हार्ड अर्न मनी है। तो ऐसे अननोन पर्सन के साथ हम लोग शेयर नहीं कर सकते। तो वो कैसा है, वो कैसे, हमको मालूम नहीं रहता ना। तो इसका मिसयूज भी हम लोग, वो हमसे कर सकते हैं। इसलिए जिसको तुम पहले से बहुत साल से जानती रहती हो, तो उसके साथ हम शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं। जी जी जी। शुक्रिया कविता, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट। अभी कविता हम ये जानना चाहेंगे, देखिए सिंगल पेरेंट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग अभी। तो सिंगल पेरेंट्स जब उनका साथी इस दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, या वो लीगली सेपरेट हो जाते हैं, या गुस्से में उन लोग अलग अलग हो जाते हैं, लीगली दे आर नॉट सेपरेटेड बट दे आर स्टेइंग सेपरेटली, तो हम ये जानना चाहेंगे अकेले कैसे जी पाएंगे अगर, लेट मी पुट दिस राइट, या लेट मी पुट इट राइट। देखिए, जैसे हम खाना खाते हैं, पेट भर जाता है, किसी से बात किया तो मन खुश हो गया, दिल खुश हो गई, वैसे हमारे शरीर के थोड़े वांट्स और डिजायर्स रहते हैं। तो एक सिंगल पेरेंट, हाउ ही और शी कैन मैनेज द फिजिकल अर्ज टू हैव अ पार्टनर? इफ यू आर कंफर्टेबल, प्लीज डू आंसर। इसके बारे में मैं क्या बताऊं एंड्रिया। देखो, अगर एक बात बताऊं, कुछ भी है तो अंदर रखना ही नहीं है। क्योंकि हम लोग कितना अंदर रखेंगे, कुछ भी कोई इमोशनल हम लेंगे, उस हेल्थ के ऊपर डिपेंड तो होता ही है। और हम ये सबके साथ शेयर नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से क्या है, आजकल तो सब सोशल मीडिया कितना आगे बढ़ चुका है। तो हम फ्रेंड्स रहते हैं, एक मात्र सोच रहे फ्रेंड्स। तो मेरे अभी देखो, तुम्हारा और मेरा अभी बहुत चाइल्डहुड फ्रेंड हम लोग हैं। तो मैं क्या सोचती हूँ, मेरे ख्याल से, मेरे दिमाग में ख्याल से, प्रैक्टिकल में बोल रही हूँ। तुम बहुत सारे अभी महिला समाज है कि सब सोशल मीडिया है, तुम जाके दो, तुम्हारा अंदर चल रहा है, तुम खुल के साथ एक महिला के साथ बात कर सकती हो। तो मेरे को ऐसा हो रहा है, तो मेरे को शादी करना है, तो आप मेरे को हेल्प करो। तो मेरे को भी समाज में जीना है, मेरे को भी समाज को में कुछ करना है, और महिलाओं को मेरे को दिखाना है। तुम भी एक अकेली नहीं हो, हम लोग साथ है, तुम भी कर सकती हो, तो इससे डरना नहीं है। और पार्टनर तो तुमको चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे समाज में से ये चल रहा है, तो उनके साथ बात सकते थे, फ्रेंड्स के साथ बात सकते हैं, तो इससे हल निकल जाएगा। माँ बाप जो रहते हैं वही है बच्चों के लिए फ्रेंड। तो उसके साथ हम लोग खुल के कर सकते हैं। तो मेरे मेरे को भी बेटा है, तो मैं उसके साथ बहुत फ्रेंडली हूँ, वो भी मेरे साथ बहुत फ्रेंडली है। तो सबको पेरेंट्स में एक संदेश देती हूँ, तुम अपने बच्चों के साथ खुल के बात करो, खुल के बात करो, तुम्हारा इससे मन हल्का हो जाएगा, और उनको भी अच्छा लगेगा। और कुछ क्या होते हैं, मन में दबाने का सवाल ही नहीं होता है, ऐसा होता है। जी जी जी, आप बहुत खुश नसीब हैं, आपके बेटे हम्म, बहुत बहुत होनहार हैं और बहुत सपोर्टिव है, दैट्स रियली नाइस। yes, That's great. And we would love all the children to support their parents, both the parents. Or if you're having a single parent, please do support your single parents. Don't leave their hands or don't be cruel to them. अभी कविता हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, तोड़े लो, ये एक हकीकत है, हम्म, हमने देखा है स्पेशली जब एक औरत या एक मर्द, अ, उनके साथी मर चुके हैं या गुजर चुका है या अलग हो चुके हैं, वट एवर इज द रीजन, दोबारा शादी कर लेते हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे हैं समझो, या नॉट इवन एडल्ट, 18 के अबव भी नहीं है, उस 18 के बिलो ही है, अगर गुजर चुके हैं, तो दोबारा शादी करने के बाद में बहुत टॉर्चर सहना पड़ता है सौतेली माँ और अ स्टेप फादर, स्टेप मदर और स्टेप फादर का
यू नो यू नो दे हैव टू सफर अ लॉट। मैंने बहुत बहुत सारी कहानियां मैंने सुना है, सहेलियों से, रिश्तेदारों से, गैरों से, बहुत बहुत सारे गेस्ट भी शेयर कर चुके हैं। दे सफर अ लॉट एट द हैंड्स ऑफ द स्टेप मदर एंड स्टेप फादर एंड स्टेप सिस्टर्स एंड स्टेप ब्रदर्स। तो जब बच्चे बीच में आ जाते हैं, छोटे बच्चे, तो उनका कोई कसूर ही नहीं होता इसमें कुछ भी, लेकिन जो गुस्सा है, जो द्वेष है, वो दिखाई देती है वो रिश्ते में। आज ही मैंने पढ़ा है एक छोटी सी एक छोटी सी कहानी, एक कहानी नहीं, हकीकत है, सच्चा सच, सच कहानी, एक सच्ची कहानी, लेट मी पुट दैट राइट, एक सच्ची कहानी। दोनों यूएसए में रहते हैं। द लेडी इज 53 years एंड शी रीमैरिड अ पर्सन हु इज 63 years। 10 साल का फासला है। पति गुजर चुके हैं तो इसीलिए दोबारा शादी कर ली। वो यूएसए में रहती है वो। तो उसका एक बेटी है, पहली शादी से, शादी का एक बेटी है। और ये दो, उसका पति जो दूसरा पति है, जो दोबारा जब शादी करी, उसके दो बच्चे हैं। तो आज शी हैज पुट अप ए पोस्ट एंड शी सेज द हस्बैंड हु आई मैरिड इज गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू हिज ओन चिल्ड्रन। मेरी पहले वाली शादी का बेटी को कुछ भी महत्व नहीं दे रहा है। मुझे बहुत तकलीफ होती है। ही इज टेकिंग केयर ऑफ मी, मेरा ख्याल कर रहा है वो, मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, बाहर ले जा रहा है, सब कुछ मेरे लिए, सब कुछ कर रहा है। लेकिन जब मेरी बेटी की बात आती है, बहुत गुस्से में आ जाते हैं, रूडली बिहेव करते हैं। और मैं ये देखती हूँ कि वो अपने पहले वाली शादी के दो बच्चों को बहुत बहुत सर पे उठा के रखते हैं, बहुत पैम्पर करते हैं। ये मुझे बहुत तकलीफ देती है। मैं अब क्या करूं, इस शादी में रहूं या इस शादी से निकलूं? तो मैंने उसको एक जवाब दिया, निकल जाओ, बिकॉज योर चाइल्ड इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट? यू विल नॉट गेट योर चाइल्ड बैक। ऐसे 10 लोग मिलेंगे, लेकिन आपका बेटी आपको फिर कभी नहीं मिलेगी, या आपके बेटी आपको कभी माफ नहीं करेगी अगर आप सही डिसीजन नहीं लेंगे, राइट? मैंने ऐसे उसको रिप्लाई किया है। तो आप क्या कहते हैं, अगर ये सिचुएशन ऐसा है तो आपके मन में क्या राय है या क्या ओपिनियन है आपका, कविता जी? तो मैं क्या बोलती हूँ, उससे नरक वाला जिंदगी है ही नहीं, क्या क्यों जीने का ऐसी जिंदगी में। क्योंकि पहली तो उससे पहली तो वो उसकी बेटी की प्रायोरिटी देना चाहिए ना, क्योंकि बेटी तो उसकी सहारा है, वो उसकी सहारा है। तो शादी करके वो खुशी नहीं है तो इतना टॉर्चरिंग करता है, तो मैं बेटी के ऊपर भी डिपेंड, तकलीफ हो जाएगा, वो भी इमोशनली तकलीफ में हो जाएगी, और इसको भी काम करने के लिए होगा, तो आगे कैसे जिंदगी कैसे करेगी वो। उसका तो जीवन तो चला जाएगा, पहले वाला पति तो नहीं रहे, दूसरी शादी कर दिया तो बेटी की जिंदगी भी खराब हो जाएगी ना। तो इससे अच्छा है तो उसके साथ जीना ही नहीं है, छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और उसके बेटी का जो है उसको देख के और कुछ तो दूसरा सोचना चाहिए। जी क्योंकि जी उससे उसको बाहर, उसको बहुत तकलीफ हो जाएगा, घुटन सी हो जाएगी उसको, कुछ काम करने के लिए मन नहीं होगा, बाहर आने के लिए मन नहीं होगा, तो उसको ही देखभाल करने के लिए टॉर्चरिंग, अभी तो मेरी जिंदगी उसके साथ ही जीना है, उसके साथ ही जीना है। तो ऐसे डर डर के वो अंदर रहेगी, तो और उसको कोई इससे बाहर निकलने के लिए कोई वो बोलेगी तो वो निकलेगी, नहीं तो वो बहुत परेशानी में आ जाएगी, और अंदर से वो इमोशनली टूट जाएगी। जी जी। अगर आप कोई इस तरह के रिश्ते में अगर आप हैं तो निकल जाइए उससे। डोंट सी योर चिल्ड्रन सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ somebody else, प्लीज। दिस विल बी अ बिग मिस्टेक इफ यू मेक योर चिल्ड्रन सफर अंडर द हैंड्स ऑफ somebody else। यस डियर। तो ये सब हकीकत है, थोड़े लोग बात ही नहीं करते इस पर। हम खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये यही होता है समाज में। छुपाने की जरूरत नहीं है, ओपनली बात करना है इन विषयों पर। तो इसलिए आज हम कविता जी से बात कर रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि कविता जी के मन में क्या है सिंगल पेरेंटिंग के बारे में। क्या सिंगल पेरेंट्स दोबारा शादी करना है, जी लेना है अपनी जिंदगी? अच्छा कविता जी, हम ये भी पूछना चाहेंगे आपसे, थोड़े सिंगल पेरेंट्स जो है ना, वो शादी ही नहीं करना चाहते हैं दोबारा। ऐसे भी थोड़े पेरेंट्स मैंने से बात किया है या मिल चुके हैं, कहते हैं कि मुझे दोबारा शादी करना ही नहीं क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है दूसरे साथी पर। पता नहीं क्या वो मेरे बच्चों को सही तरीके से अम, देखभाल करेंगे या नहीं। तो बहुत सारे लोग दोबारा शादी नहीं करे, वो माँ और बाप दोनों बनकर अपने बच्चों को का परवरिश कर रहे हैं। ये एक हकीकत है, ये बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन थोड़े लोग जो है, दे वॉन्ट टू लिव देयर लाइफ, जीना चाहते हैं वो लोग।
अगर कोई खुद के मन से जीना चाहते हैं, एक अच्छा जिंदगी जीना चाहते हैं, तो उनका उनको मौका जरूर देना चाहिए, राइट। तो इसीलिए बहुत साल पहले हमारे सोशल वर्कर्स जो थे, राजा राम मोहन रॉय एंड मेनी ऑफ द अदर सोशल वर्कर्स, दे हैव वर्कड ऑन द एबॉलिशन ऑफ सती। आपको याद है, सती एक ऐसी चीज है जो अगर पति मर गया तो पत्नी भी उसके शव के साथ ही जला देते थे, मार देते थे। आई मीन मारते नहीं, जला देते थे, एक तरह की मार देते हैं, जैसे ही होता है ना, इट्स ए काइंड ऑफ मर्डर। आई डोंट नो, आई शुड नॉट से दैट, बट इट इज समथिंग लाइक यू आर किलिंग अ पर्सन अलाइव। तो सती को हम कंप्लीटली एबॉलिश कर चुके हैं भारत देश से। तो इंडिया हैज बिकम वेरी प्रोग्रेसिव। ये सती को एबॉलिश करने के बाद में विडो रीमैरिज एनकरेज किया गया। तो हम लोग विडो रीमैरिज के बारे में बात करेंगे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे, जो हमारे बहनें हैं बाहर जो सुन रहे हैं यहाँ ये सेशन, उनके लिए किस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे? नॉट ओनली विडोज, इवन विडोअर्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर देम? अगर वो दोबारा शादी करना चाहते हैं लेकिन समाज से डर रहे हैं कि भाई मैं कैसे शादी करूं, मैं क्या बोलूं किसी को, मुझे शादी करना है, मुझे भी जीना है। जब कोई अभी देखिए एक दंपति जा रहे हैं गाड़ी पे या टू व्हीलर पे या कार में, या चलो चलते हुए भी जा रहे, तो एक चुभन सी होती है, देखो उन लोग इतनी खुशी से जा रहे हैं, तो मैं क्यों खुश ना रहूं? अभी तो मेरा साथी है ही नहीं, तो मेरा भी हक बनता जीने के लिए। तो कविता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर जरूर, वो सती तो चला गया वो जमाने में। आजकल तो क्या है, माँ बाप के बाद तो पति ही रहता है। तो पति के ऊपर बिल्कुल तो डिपेंड नहीं रहना ही चाहिए, हमको तो कुछ भी करना ही करके एक करना ही है। तो आप जो मेरे को पूछ रहे हैं, बिल्कुल शादी करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, सबके सबके अंदर एक फीलिंग्स रहता है। तो ये होता है नहीं, क्या होता, क्या बोलते हैं, आशा बोलते हैं। आशा, देखो पहले मेरा पति ऐसा था, अभी तो मैं अकेली हो गई हूँ। तो उसको भी अच्छा लगता है। देखो अगर वो होते थे, मेरे को बाहर लेके जाते थे, घूमने के लिए लेके जाते थे, मेरा सुख दुख पूछते थे। तो सब एक एक बार क्या होता है, हम लोग बच्चों को थोड़ा बोल सकते हैं और कुछ हम लोग उसके साथ शेयर नहीं कर सकते। कि मैं क्या बोलती हूँ, आजकल के बच्चों से हम मैं तो बहुत बहुत सीख रही हूँ। बहुत फ्रेंडली रहते हैं, इसको तो उसको तो बिल्कुल शादी करानी करनी ही है। उसको अच्छा लगेगा, अगर ऐसा पार्टनर देख के उसको शादी करके उसको अच्छा लगेगा तो उसको जरूर करना चाहिए। क्योंकि अंदर तो रहता है सबके ऊपर, अंदर स्केप के अंदर चलता रहता है, क्योंकि मेरे को भी खुश रहना है, बाहर जाना है, घूमने लेके जाना है कोई तो मेरे को चाहिए। वहां जाएंगे, यहाँ जाएंगे, उसके उसके जो मन में चलता रहता है, उसकी जो कुछ विशेष है तो बोल सकती है। तो मैं वो अगर है तो मैं उसके साथ शेयर कर सकती हूँ, उसके साथ मांग सकती हूँ। तो मेरे को भी एक पार्टनर चाहिए करके कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जी जी जी, dear friends, we've taken a small break and we are back again. Taking a break from toxic people, taking a break from life, and enjoying yourself, loving yourself, protecting yourself from the wrong kind of people is always good. We are in conversation with Kavita. She is my classmate. We've met after 35 years. And it's a beautiful journey getting to know her and getting to know life through Kavita. कविता जी, अभी हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, थोड़े पेरेंट्स जो है जिनके साथी गुजर चुके हैं या सेपरेट हो चुके हैं, उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनके बच्चों का शादी भी हो चुका है, और उनके बच्चे खुश हैं शादी में, दे आर वेरी हैप्पी। वो अकेलापन महसूस करते हैं, मेरे बच्चे भी शादी करके चले गए, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूं या अकेला हूं, मुझे क्या करना है? ये तो बहुत दुखी सिचुएशन है। दे वॉन्ट समवन इन दैट लाइफ, दे आर वेरी वेरी सैड एंड वेरी वेरी लोनली। क्या उनका हक बनता है शादी करने का? लेट मी पुट दैट राइट, क्या उनका हक बनता है ये डिसीजन लेना खुद, मैं शादी करूंगा या शादी करूंगी? मुझे भी जीने का हक है। मैंने तो जिंदगी देखा ही नहीं, मेरा पति बस चले गए, गुजर चुके हैं या छोड़ चुके हैं, वट एवर इट इज द रीजन, या मेरी पत्नी, तो मैंने जिंदगी का आनंद ही नहीं उठाया मैंने। थोड़े लोग ऐसे भी हैं जिनके पति या पत्नी बहुत टॉर्चर देते हैं, इतना टॉर्चर सब कुछ सहकर एक दिन ऐसे आता है कि क्या मेरा हक नहीं बनता जीने के लिए? जब ये उनके मन में ये बात आती है,
तो उनका दिल रोता है अंदर से और वो दोबारा शादी करना चाहते हैं या एक साथी को ढूंढते हैं। क्या ये आपके नजर में सही है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? बरोबर, बात सही है, क्योंकि बच्चों बच्चों जो होते हैं शादी होने के बाद, तो अगर सिंगल पेरेंट है तो वो अकेली हो जाएगी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी तो खत्म खत्म हो ही चुकी रहती है। बार बार में जो आना जाना उनका तो लगा रहता है। पर क्या है, जो बच्चे चले जाते हैं तो उनका 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 जो कमिटमेंट रहता है, जॉब रहता है, तो बिजी हो जाएंगे। तो वो तो अकेले हो जाएंगे ना। तो वो क्या करेगी करेगी मतलब क्या करेंगे, वो समझ में नहीं आता उसको। समाज के डर से हमको देखते जाएंगे तो हम हमारा तो कुछ भी होता ही नहीं है। क्योंकि अगर उसने लाइफ में इतना टॉर्चरिंग किए हो सही है, और बहुत ये किया है, तकलीफ की है सही है, तो फिर उसको खुद को विचार करके, खुद को सोच के दोबारा शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जी कविता, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि थैंक वो यू। तो अकेली 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 टूट जाएगी अंदर। अभी उनका तो वो उनका उनका लाइफ में वो तो बिजी हो जाएंगे। तो उसको देखने के लिए वो तो फोन करेंगे, ये करेंगे, सब तो होता ही रहेगा। पर उसको खुद के लिए क्या है, उसकी खुद की अस्तित्व क्या है, वो तो उसको मालूम ही नहीं हो रहा है ना। तो उसके ऊपर उसको खुद को सोच के दोबारा शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी कविता, हम समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट आउट, थैंक यू फॉर गिविंग द हिम्मत और करेज to those people who really want this courage from you, that it's okay to get married again. आप कोई गुनाह नहीं कर रहे। अगर साथी ढूंढ रहे हैं, आप कोई गुनाह नहीं कर रहे। आप अपने अपने खुद के लिए खुशी ढूंढ रहे हैं बस। ये जीवन बहुत छोटी है, खुशी से जीना है और खुशी से इस धरती को छोड़ के चले जाना है जब वक्त आए। जब कविता जी, हम ये पूछना चाहेंगे अभी, देखिए, थोड़े लोग अपने शादीशुदा जिंदगी में बहुत सारे तकलीफें उठाते हैं, बहुत बहुत सारी तकलीफ उठाते हैं। थोड़ी तकलीफ ऐसे जो मुंह खोलकर नहीं बोल सकते, खुद के माँ बाप से नहीं बांट सकते हैं, बच्चों के साथ नहीं बांट सकते हैं, या समाज के साथ। तो ऐसे लोग क्या करना है? चाहे वो मर्द हो या औरत, मैं इन दो, इट कैन बी जस्ट एनी बडी डियर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। इसका मैं क्या बोलती हूँ, तो किसी को सुनना नहीं है, इसके ऊपर किसी का भी सुनने का नहीं है। अगर एक एक इसको पूछेंगे, उसको पूछेंगे, तो एक एक को एक एक जवाब देता जाएगा। तुम मत करो, क्या करोगी, तुम ये मत करो, वो करो। तो वो तो उसके हिसाब से बोलते जाएंगे ना। तो उसका खुद का डिसीजन क्या है, उसका खुद का डिसीजन, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड डिसीजन लेके जिएगी तो उसका जीना तो होता ही नहीं है। तो उसको क्या चाहिए, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको मन में क्या चल रहा है, उसको हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए जिंदगी में, सबके साथ खुशी से रहना है, उसको भी जीना है समाज में, तो उसको खुद को डिसीजन लेके जीना है। जी जी। तो खुद को खुद खुद अच्छा सा डिसीजन देना है, सेल्फ चॉइस। हाँ, ओके, सेल्फ इट शुड सेल्फ बी योर चॉइस देना है। चॉइस। यस। अगर वो चॉइस ही अगर नहीं लेने वाली है, कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहा है, ब्लैंक हो गई है, कुछ भी समझ नहीं आ रही, वो टाइम में क्या होता है, वो किसी को भी नहीं बोल सकती, घर में नहीं बोल सकती, बच्चों के साथ नहीं बांट सकती, समाज को भी नहीं बोल सकती। तो कौन है, वे एकमात्र है फ्रेंड्स। जो तुमको कौन सा अच्छा लगने वाले हैं, फ्रेंड्स कितने सारे फ्रेंड्स रहते हैं आजकल। एक ही मात्र है, मैं बोलती हूँ, फ्रेंड्स के साथ हम कुछ भी खुल के बात कर सकते हैं। उसके साथ तुमको कौन अच्छा लगेगा, बात करो, और उसकी सलाह ले लो, और खुद के लिए डिसीजन तुम ले लो। खुद की जो तुमको अच्छा लगेगा, वो डिसीजन ले लो, तो तुम खुश रहोगी। तुम पहले खुश रहोगी तो तुम दूसरों को खुश देखोगी, कुछ दूसरे के साथ रह सकती हो, समाज को कुछ कर सकती हो, समाज को साथ खुश दे सकती हो। मेरे ख्याल से वो है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट। सिंगल पेरेंटिंग के बारे में और कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? अगर शेयर करना चाहेंगे तो शेयर कीजिए। अगर मैं कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछा और आप बताना चाहेंगे अपने ओर से, आप बता सकती हैं। सिंगल पेरेंट का तो बहुत मुश्किल है
मुश्किल मतलब वो फाइनेंशियल भी रहे नहीं रहे तो भी वो सिंगल ही हो जाएगी, सिंगल हो जाएगी तो उसको मानसिक बहुत हो जाएगा, मानसिक तौर से बहुत गुजरती है वो, अंदर टूट जाती है। तो इससे एकमात्र सहाय खुद को उसको खड़ा करना है। सोच लो अगर तुम्हारा कोई भी नहीं है, तुम भगवान का साथी मान लो, भगवान ही एकमात्र, उसके साथ तुम आशीर्वाद ले लो, उसके साथ बात करो, अगर फ्रेंड है तो उसके साथ बात करते, तुम खुद को खड़े, तुम्हारे पैर के ऊपर खड़ा रह के तुमको खुद को डिसीजन लेके तुमको इससे बाहर निकलना ही है। अंदर बिल्कुल किसी को भी, मैं बोलती हूँ किसी को भी अंदर घुटन से रहना ही नहीं है, अच्छा लाइफ लेना है। क्योंकि आजकल तो लाइफ बहुत कम है, हम में है, आज है नहीं है, बहुत छोटी है हमारी लाइफ, बोल नहीं सकते। इससे खुशी खुशी से जीना है, खुशी खुशी से देना है, दूसरों को भी खुशी देना है। जी सिंगल कविता। पेरेंट वो अगर नहीं चाहते हैं ना, तो खुद को तुम डिसीजन ले लो, तुमको शादी कराना है तो तुम शादी कर लो, अगर नहीं कराना है तो भी तुम खुश हो, तुम कर सकती हो, कुछ काम करो, बिजी रहो, तो वो भी कर सकती हो, दोनों में बोल रही हूँ। जी कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने एक सिनेमा देखा है, तो आई थिंक 1-2 साल पहले मैंने देखा है, बहुत पुरानी सिनेमा है, कॉल्ड एज वाटर। आपने देखा है वो सिनेमा? नहीं। वो एक हिंदी सिनेमा है, इट्स कॉल्ड एज वाटर। I don't get the, I don't remember who has produced that, नहीं। but it's a beautiful movie जहां पर जो जिनका पति नहीं है, जिनका पति गुजर चुके हैं, जो विडोज हैं, पूरे एक साथ रहते हैं। शायद वो नॉर्थ इंडिया में ऐसे कोई जगह होगा, आई डोंट नो, वृंदावन शायद, पता नहीं, वहां पर ऐसी एक जगह है जहां पर, आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, एक जगह ऐसी रहती है जहां पूरे, जो जिनके पति गुजर चुके हैं ना, वहां पर पूरे विडोज रहते हैं। तो ये कहानी बहुत अच्छी तरीके से दे हैव शेयर्ड दिस मूवी वेरी वेल। दे हैव शोड द रियलिटी ऑफ इंडिया, या। ऑफ हाउ इंडियन विडोज वर ट्रीटेड अर्लियर। अब नहीं है, होगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, हो सकती भी है, पता नहीं। ये सिनेमा ऐसे ऐसा निकाले, एक औरत जब उसका पति गुजर जाता है, वो भी इस हीरोइन जो थी इस सिनेमा में, उसके पति बचपन में ही मर गया है। वो छोटे हैं जब वो शादी कराते हैं ना, चाइल्ड मैरिज। तो ये कहानी उस पर आधारित था। तो चाइल्ड मैरिज किया था, और वो यू नो बचपन में ही उसका पति मर गया। शी डिड नॉट स्पेंड इवन अ सिंगल डे विद हिम। बचपन में ही मर गया उसका पति, तो उसको फिर बाल विवाह के बाद में पति गुजर गए, तो उसको पूरा हेयर वेयर निकाल दिया उन्होंने, आई मीन मुंडन करवा दिए, उसके हेयर निकाल दिए, और उसके कपड़े पूरे बदल दिए, वाइट क्लोथ्स उसको दे दिए। एंड शी वॉज पुट टुगेदर विद ऑल द अदर विडोज, अलग अलग उम्र के जो विडोज है उनके साथ उसको रख के, आई मीन आई एम टेलिंग द होल स्टोरी हियर, इस सिनेमा में एक औरत जिसका पति गुजर चुके हैं, तो उस औरत का फायदा कैसे उठाते हैं सरपंच लोग या अमीर लोग, I mean, all of these people who are these Thakur type of people in the earlier times we had, no, these sarpanches and all of that, how they manipulate the widows. They use them for sexual pleasure. This movie is very, very powerful, which I have seen. I think all of us should watch this movie. It's a good movie with a good message. So, वो लाइफ जीने के बदले किसी और के कोई और आके आपका बदन छुए, वो अच्छा नहीं। आप दोबारा शादी कर लो, अच्छे से रहो, then different people coming and using you for their benefit. I mean, I don't know if I should say all this online, but that movie Water is a very good movie, especially for widows across the world. Widows or widowers, both. Let's not be gender biased. Yes, so you have a right to live your life and remarry. If at all you feel like remarrying somebody, do remarry, find the right person and remarry. So I would advise everyone to take the right decision. As Kavita ma'am said, खुद कड़ा होकर डिसीजन लेना पड़ता है। सलाह लेना है लेकिन डिसीजन खुद को लेना है। मैं राइट? जी बोलिए। वही मैं बोल रही हूँ, समाज तो भी बोलेगा, और तुम सबके साथ पूछोगे तो सब 10 लोगों को पूछोगे तो एक एक को एक एक जवाब देते जाएंगे, तो उसके ऊपर वो टाइम में क्या होता है, उसको क्या डिसीजन लेगी वो समझ में नहीं आता है उसको, पहले से वो टूट चुकी रहती है, तो क्या करेगी वो, करेगी, वो करेगा, दोनों में बोल रही हूँ, मेल फीमेल दोनों, दोनों को मैं बोल रही हूँ। खुद को उनको सोचना है, तुमको क्या अच्छा लगेगा, तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या अच्छा लगेगा, तुमको
हैप्पीनेस चाहिए, समाज में लेना है, दूसरों को भी एक समाज में मैसेज देना है आगे। ऐसा उनके साथ जो हो रहा है, हुआ चुका है, वो किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसा समझ के उनको खुद को डिसीजन लेके थोड़ा बोल्ड होके स्टेप लेना ही है। जी कविता जी, हम सहमत हैं। नहीं, नहीं, मैं मेरा खुद के मैं बोल रही हूँ आंटी। पहले मैं बहुत सॉफ्ट थी, घर में भी सॉफ्ट थी, सेंसिटिव थी, पर आज मैं ऐसी नहीं हूँ। थोड़ी 7 8 90% देख लो, मैं स्ट्रांग हुई हूँ। क्योंकि हम स्ट्रांग नहीं है तो कोई हमारा सहारा नहीं मिलता, दबा के जाते हैं। हम खुद के लिए सिंगल पेरेंट होने का तो बहुत मुश्किल है। हम खुद के लिए लड़ेंगे नहीं, स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो कौन हमको सहारा देगा? सहारा देने वाले हैं, पेरेंट्स है, ब्रदर्स है, सिस्टर्स है, फ्रेंड्स है, सब है। तो वो तो हमारा जिंदगी भर रहेंगे, पर खुद के लिए हमको स्ट्रांग नहीं, हम जितना हम कोशिश नहीं करेंगे, वो तो आगे चलकर हम नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। वो जी तो जी करना ही है हमको। जी कविता, हम समझ पाते हैं। अगर आपको मौका दिया गया दोबारा शादी करने के लिए, क्या आप राजी हो जाएंगे? वो मेरे को सोचना पड़ता है, वो सोचूंगी। अभी तक तो सोचा नहीं इसके बारे में, अभी सोचूंगी, देखूंगी क्या होता है करके। जी जी जी। आप भी एक सिंगल पेरेंट है ना, तो इसीलिए हाँ। मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा है। क्या आपको अगर दोबारा शादी करने का दिल बोला, क्या आप कर लेंगे? या समाज कुछ बोले भी, या ताने मारेंगे, या अलग अलग किस्म की बातें करेंगे, तो आप उसको सह सकोगे वो सब कुछ, और आगे अपना जिंदगी को ले जा सकते हैं? नहीं, वो मैंने भी देखा है, समझ में दूसरा शादी क्या तीसरा शादी भी किए चुके रहते हैं। उन्होंने तकलीफ बहुत सहा है। पर मैं सोचती हूँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले हम जो शादी करते कर चुके हैं, वो तो हमारा जिंदगी भर रहेंगे, छोड़ दिया तो वो तो खुशी से हम लोग तो जीते आए हैं, आगे भी जीतेंगे। पर शादी के बारे में सोचना तो बहुत मुश्किल है। सोचना, अगर अच्छा पार्टनर मिल गया तो बच्चे रहते हैं उनको। पब्लिक ओपिनियन में बोल रही हूँ, पब्लिक ओपिनियन से मैं बोल रही हूँ, तुमको शादी कराना है, नहीं तो मेरे को करना है तो पहले तुम्हारे बच्चे हैं तो उनसे पूछ लो। उनसे पूछो, वो अगर क्या सलाह देंगे, तुमको क्या अच्छा लगेगा, तो तुम कर सकते हो, हम कर सकते हैं। तो समाज से तो डर के हम रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। और समाज तो क्या बोलते हैं, अभी भी बोलेगा, आगे भी बोलेगा, पर उसको अंदर एक फीलिंग रहती है, अगर मैं शादी की हूँ, देखो, अगर कर ली, उन्होंने कर लिया शादी दूसरी, तो समाज तो बोलते रहेगा, वो तो उसके जिंदगी भर रहेगा, देखो उसने शादी किया, ये किया, वो की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी, ऐसे तो वो बोलते रहेंगे ना। तो छोड़ देने का, गट मन से बोल्ड होके छोड़ देने का, अपनी लाइफ में मस्त रहने का। जी जी पर मुश्किल बहुत है, मुश्किल तकलीफ होती है, मेरे को मालूम है, क्योंकि मैंने भी देखा है। और कितने मेरे फ्रेंड्स है वो जो बोलते रहते हैं, मैंने ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और आजकल सोशल मीडिया में हम लोग देखते हैं, पर बहुत मुश्किल है। पर इससे बाहर निकलना ही है, अंदर से बिल्कुल टूटे नहीं रहना है। जी कविता जी, जी बहुत अच्छा, यू हैव शेयर दैट वेरी वेल। देखिए कविता जी, अभी एक हकीकत के बारे में हम बात करना चाहते हैं। दोबारा शादी कर लिए, स्ट्रांग बनकर, समाज से लड़के, ठीक है, हमारे घर परिवार लोगों के साथ बात करके, उनका आशीर्वाद के साथ दोबारा शादी कर लिए, चाहे वो मर्द हो या औरत, राइट, शादी कर लिए। और वो दोबारा शादी करने के बाद में फिर अनेक तरह के what can I put that in the right way, अनेक तरह तकलीफ, की मुश्किल तकलीफ। सामना करना पड़ता है दोबारा। what you say, टॉर्चर, अने you cannot say, I don't know how to put that in the right way. If you remarry again and face a lot of torture by that partner, क्या करना है? क्योंकि ऑलरेडी पहले एक शादी कर लिए, इतना टॉर्चर भुगत चुके हैं, या अच्छा चला भी होगा शादी, लेकिन अब दोबारा शादी करने के बाद में फिर वही, लाइक यू हैव टू फेस हेल विद दैट पार्टनर। तो ऐसे लोग शायद मरने का ही सोचते, आई थिंक दे विल फील लाइक डाइंग, दे डोंट वांट टू लिव फॉर अ सिंगल मिनट, राइट। तो इसके बारे में भी बहुत सोच समझ कर ही आगे जाना है। अगर अगर दूसरा शादी करने का इरादा रखते हैं,
क्या वो इंसान मुझे एक्सेप्ट करेगा? आज एक्सेप्ट करेगा, कल मुझे लात मारेगा, कल मुझे दरवाजा दिखाएगा, किस तरह का टॉर्चर मुझे सहना पड़ेगा उसके साथ। ये सब सोच के ही हम लोग आगे जाना है। Am I right, कविता? या तो क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मैंने देखा, ये भी सुना है कविता, सेकेंड मैरिजेस वर्क वेरी वेल compared to first marriages in many people's lives. Very few people say that why did I get married the second time? But most of the people who I have met, and I have read lots of stories online and offline, I've read through in magazines and online a lot of stuff. Second marriages have worked very well, and in some cases, third marriages also have worked very well. What do you have to say? वही मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिकल देखा है। और अभी तो सब सोशल मीडिया, फेसबुक पे, वही मैं बोल रही हूँ बार बार, हम तो देख भी रहे हैं। पर ऐसा नहीं बोल सकती, क्योंकि हम लोग पहला जो पार्टनर हमारा चला जाता है इस दुनिया से, और जो समाज में उसको जीना है, समाज तो छोड़ दो, समाज में उसको जीना ही है। और अगर सेकंड पार्टनर भी मिलेगा तो उसके साथ वो खुश रहेगी, सोच के रहेगी तो कर सकते हैं। पर उसको जो अंदर वो जो तकलीफ सह चुकी है, आगे क्या होने वाला है, तो उसको तो वो डेयरिंग से बोल्ड करके उसको फेस करना पड़ेगा। क्योंकि पहले से उसको देख देख लेना चाहिए वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो ठीक तरह से हमारे साथ, उसके साथ ठीक तरह से बर्ताव करता है कि नहीं, उसका जो है वो स्वीकार करता है कि नहीं। वो सब देख के, उसको देख के बाद में उसको क्या होता है बाद में। क्योंकि हमारे जो पति रहते, हमको तो कितने साल से हम जो उसका स्वभाव मालूम है, हमारा उसका सब मिलता है जुलता है, पर बाद में जो हमको मिलने वाला है, बोल्ड स्टेप लेके ही उसको चुनना पड़ता है। अगर उसको नहीं चाहिए, सुनते रहते, उसको वो जिंदगी नहीं चाहिए, तो सिंगल ही रहना उसको ठीक रहेगा। वो खुद को बिजी रखेगी और समाज के लिए कुछ करेगी, वो भी चलेगा। अगर तुमको ये करना है उसके साथ, कुछ भी अच्छा लगता है तो उसके साथ जीना है तुमको, तो पार्टनर कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। पर उस आगे क्या होता है उसको ही बोल्ड से फेस करना पड़ेगा। क्योंकि वो टाइम में तो कोई भी नहीं आने वाला है, उसका वो खुद का डिसीजन रहता है ना। जी जी जी। तो अगर दोबारा शादी करने का इरादा है, सोच समझ के कीजिए, क्योंकि दोबारा दोजख में नहीं गिरना है, दोबारा कीचड़ में नहीं गिरना है। सोच समझ के शादी कीजिए, सही इंसान से शादी कीजिए। हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ इफ इट्स अ रीमैरिज और यू आर इन अ रिलेशनशिप विद एनीवन। नाउ डियर, वी कम बैक। जी कविता जी, my dear friends, we've had a wonderful session with our celebrity guest. She is Kavita, a close friend of mine, a classmate of mine. As I told you, I met after 35 years, and I requested her to share about single parents. She is a single parent and she is boldly facing life. I would love to see her happy, and I would encourage her to find happiness in life. And I would love her to see the world and enjoy life in the right way. Kavita, we wish you all the best in all your endeavors. We look forward to many more happy times with you. We love you for who you are, and we wish that you find a beautiful and a happy person in your life. We want you to be settled, remarry somebody, and live a happy life. I would wish that for you, because we all need somebody in our life to make us happy, and we need to live this life completely. Loneliness kills, right? And if you have a wonderful partner, it's really a blessing from the Almighty. We would love the Almighty to bless Kavita with a wonderful partner. Not only Kavita, we would love all the single parents, if you are interested. And if the Almighty has that written for you, definitely you will find a beautiful partner in your life, and a partner who could really respect you more than love, respect you and love you as well, and treat you in the right way, and live a happy life to the last breath. Yes, Kavita. Thank you so much, dear. So, dear friends, today I'd like to put in a request to Kavita to share a message for all the single parents as to what they should be doing according to Kavita. Let's get to know about her opinion on single parenting. Yes, dear. या मैं एक समाज को एक संदेश देना चाहती हूँ, सिंगल पेरेंट होना तो मुश्किल है ही नहीं। क्योंकि वो तो हमारा पार्टनर, आज हम है, कल है, कोई भी जा सकता है, एक आगे जाता है, एक पीछे जाता है। सिंगल पेरेंट को मैं वही बोलती हूँ, तुमको क्या अच्छा लगेगा, तुम्हारे का जो फीलिंग है, तुमको खुद को खड़ा बोल्ड कर लो। बोल्ड करके तुमको खुद को पैर के ऊपर खड़ा रखे तुम कुछ करो।
किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। और तुमको तो पेरेंट्स है रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनसे सलाह ले लो, उनसे सलाह मशवरा करो। और फ्रेंड्स रहते रहे उसके साथ शेयर करो। तुम्हारा इतना बहुत बड़ा विशाल दुनिया है, इतना बड़ा विशाल क्या बोलते हैं, इतना बड़ी दुनिया है। तो तकलीफ में मत सहो तुम। तकलीफ में तुम तो बिल्कुल है ही नहीं। तुम औरत तो शक्ति हो, शिव शक्ति हो। इसलिए तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, और बहुत शक्ति है। इससे तुम बाहर आ जाओ और कुछ कर सकती हो, तुम करो। और करके दुनिया को दिखा दो तुम एक बहुत बोल्ड हो, और तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, वो मैं बोलती हूँ। तुम कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। तुमको ये ऐसे ये नहीं हो तुम घर में बैठो सिर्फ खाना बनाओ, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि आजकल तो बहुत सारे बाहर जाते हैं, घर में भी काम करते हैं। तुम्हारे अंदर एक शक्ति भर लो, तुम कर सकती हो। और समाज को भी तुम क्या कर सकती हो वो भी दे सकती हो। सबको संभाल के दुनिया को दिखा दो तुम क्या हो करके। वो मेरा मैसेज है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कविता। टू फॉल इन लव, age is not a barrier. Age is not a barrier to fall in love. Age is not a barrier to be respected and loved in the right way. And what I'd like to share today is, like, if at all you are in your early 30s, 40s, 50s, 60s, maybe 70s also, if you feel that you need a partner, go ahead, find the right kind of partner and make the right kind of decision and live a beautiful life. Do not get afraid or fear for the society. जितना डरते हैं उतना आप ही खुद का नुकसान होगा। कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। दोबारा आपसे फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग सो बोल्डली टुडे एज अ सिंगल पेरेंट एंड गिविंग आउट अ राइट मैसेज दैट मेक द राइट डिसीजन एंड बी ऑफ यू नो यूज टू योर ओन सेल्फ, लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। खुद का मदद करो, खुद आगे जाओ। ये आई लव दिस, बार बार यही बोल रहे थे आप। खुद आगे आना है, खुद करना है, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है। सलाह लेना है, लेकिन आपका चॉइस, खुद का चॉइस लेना है। अंत में आप खुद भी रिस्पॉन्सिबल हो जो भी आप चॉइस लेते हो। और अभी एक बड़ी बात आपने ये भी कहा है, अपने बच्चों का मशवरा लो। टेक द सजेशन ऑफ योर चिल्ड्रन, एंड इफ योर चिल्ड्रन सपोर्ट यू, जस्ट गो अहेड एंड हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ। राइट जी। देखिए, अभी फिर एंड करने के से पहले अभी एक बात मेरे मन में आया है। अगर बच्चे, अगर जो बड़े बच्चे हैं वो एग्री नहीं होते हैं, नहीं अम्मा आप नहीं शादी करो, मेरा इज्जत चले जाएगा, पापा आप दोबारा शादी मत करो, मेरा इज्जत चले जाएगा, लोग क्या कहेंगे, या मेरी शादी रुक जाएगी आप दोबारा शादी करने से, मेरे पर्सनल लाइफ में तनाव आ जाएगी, थोड़े लोग ऐसे भी बात करते हैं, थोड़े बड़े बच्चे। तो ऐसे बच्चों को, या ऐसे परिवार लोगों को, या ऐसे सिंगल पेरेंट्स को, इस तरीके के सिंगल पेरेंट्स के लिए आपका मैसेज क्या है? वो तो है, वो तो बोलेंगे अभी कितने भी है वो तो खुद के लिए शादी करेंगे ना, तो भी वो बच्चे क्या सोचते हैं, ये लोग क्या सोचते करते बैठेंगे, तो उनका तो कुछ होने वाला ही नहीं। उनके साथ खुद खुल के बात करो, खुल के बात करो, वो भी समझ लेंगे तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुमको क्या चाहिए। अगर बच्चे खुशी नहीं है तो उनके साथ खुल के बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। खुल के बात करके उनके साथ बात करके शेयर करके तो उसका मसला हल कर सकते हैं। जी जी कविता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच कविता फॉर बीइंग बोल्ड एंड courageous to come on the platform called as the International Fab Talks and share your thoughts and views and encourage people in the right way. You've been doing a wonderful job. We wish you lots of love and happiness today and always. Stay blessed. नमस्ते। Namaste थैंक dear. यू सो मच एंड्रिया, सो मच, वेरी नाइस। आई फेल्ट वेरी कूल एंड काम। Thank you dear, same to you dear. See, dear friends, with this, we come to an end now to the International Fab Talks for today. If you like what Kavita ma'am has shared, do share this video with the right kind of people. You might be having so many single parents around you. Encourage them to live a beautiful life. Don't let them suffer. They have a right to live with a companion till their last breath. Do not see your parents sad and alone. If your parents have lost their partner or are separated from their partner, I mean their husbands,
or wives, if they have been separated from their partners, see that they find some happiness. Do not be selfish and do not be cruel to your parents. They have a right to live just the way you have a right to live, right? With this, we'd like to sign off now from the International Fab Talks. If you like what we are doing on the International Fab Talks, stay connected with us, support us, like, comment, subscribe, and share to the International Fab Talks. Prioritize family peace, love your family. The first thing in life is love your family. Give them all that you can. With this, we'd like to sign off now from the International Fab Talks. Stay connected and stay blessed. Thank you, dear.